One. Welcome back to an Arrival podcast, where we uncover unheard voices, unseen stories, and struggles that women go through their own journey that we want to be a part of it. Today, I am joined by Mrs. Jyoti. She's an HR professional. She's been into this profession since last 13 years. Let us know her journey all together. And welcome, welcome, Jyoti. Thank you so much, Chelsea. Thank you so much giving me this opportunity to share my voice to your podcast. Thank you so much. ज्योति मैंने तो आपके बारे में बता दी थी, आप एचआर प्रोफेशनल हो, बट आप आपकी डिटेल्स बताएंगे प्लीज. Sure, sure. So, I do have a 13 years of overall experience in HR. Currently, I'm working in one of the C companies. And I'm working as a HR manager. I'm taking care of entire HR function. Okay. So, relate to the kitchen only. Uh, I am very happy currently. Why? Because see, HR is a voice wherein a lot of females work, right? And it is a good wherein female contribute to the society through the HR, doing the consultation, handling the employees, by taking care of them through the mental health or sharing their emotions. Sometimes what happens, employees have a lot of concerns related to their personal lives, related to their professional lives. So they came to us, they came to the HR to discuss those things. So I'm very happy in my profession. तो ऑफकोर्स नारीज की हम अगर बात करें तो एचआर नारीज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर है, बिकॉज वो कनेक्शन होता है, वो एम्पैथाइज करते हैं, सिंपैथाइज करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं. ये दो तीन क्वालिटीज इतनी कॉमन हो जाती है कि मोस्टली विमेन प्रेफर एचआर. एचआर प्रेफर्स करेक्ट, दोनों साइड से हो गए. तो क्या ये आपने हमेशा से सोचा था कि एचआर प्रोफेशन में जाना है? Frankly speaking, no. Because I did my master's in nutrition. Okay. Yeah. So after nutrition, I thought that I will become a dietitian. Okay. Yeah. So I did my master's in Jaipur University, which is in ICT Rajasthan University. And later on, I thought I will become the dietitian. So I did the internship in multiple hospitals in the Jaipur. I completed my internship in hospital. Jaipur has a lot of opportunity for the dietitian. एंड ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं डाइटिशियन? It is 2008. तब डाइटिशियन करके कंसेप्ट भी था? नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, बट लोगों के लिए एक नया कोर्स था. सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि करना चाहिए. मास्टर्स में करके न्यूट्रिशन करेंगे, सो यू विल बिकम अ डाइटिशियन, नॉट अ डॉक्टर बट इक्वलेंट टू डॉक्टर. So that's why I thought I will contribute to the society through the health. So later on, I do the internship in Apollo in Delhi. Okay. But I thought there is a 6-day working, right? 7 days working, not 6 day also, 7 day working. एक दिन छुट्टी? नहीं, छुट्टी नहीं होती थी. एंड उसमें भी ये होता था कि एक दिन छुट्टी है तो वो बहुत, अगर जरूरत है तो कई बार बुला भी लेते थे. एंड देन लेटर ऑन आई थॉट कि मैं जिस पीजी में रहती हूँ वहां पर 5 दिन छुट्टी होती है एंड सैटरडे संडे ऑफ होता है, जल्दी भी आ जाते हैं. सो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ मैं अर्न भी ज्यादा कर सकूँ और इंजॉय भी कर सकूँ. तो I thought that time. So one of my PG mates asked me to go for the interview in one of the sales company. So I went there, I got the opportunity and salary उस टाइम ज्यादा नहीं थी, लेकिन 5 दिन काम था, ये बहुत था. घर पर नहीं बताया था कि आई एम डूइंग. अच्छा, जॉब. उनको लग रहा था आप इंटर्नशिप क्योंकि Okay. इंटर्नशिप बोला था, इंटर्नशिप करो और वापस आ जाना. तो मैं थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ अर्न करना है. आई वांट टू स्टेबल इन द फाइनेंशियल एज वेल. आई वांट टू स्टैंड ऑन माय लेग्स. मुझे खुद से खड़ा होना है, कंट्रीब्यूट करना है. सो आई थॉट कि ठीक है, मतलब दिस इज द इनिशियल स्टार्ट. एंड देन आई जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स का था, टारगेट भी
एंजॉय में कंप्लीट हो गया। 3 लाख का टारगेट था एंड फर्स्ट 1-2 कॉल में ही कंप्लीट कर दिया है। सो माय सेल्स मैनेजर वाज वेरी हैप्पी कि इसको तो हमें अपने उसमें रखना है ताकि आगे सेल्स का टारगेट कंप्लीट हो। बट there is HR. So she told me that you need to contribute or you need to continue your career into HR. अभी HR का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि होता क्या है HR। और अभी भी कितने कंपनीज में एचआर टीम भी नहीं होती है। नहीं सिर्फ जो फाउंडर होता है, सीईओ होता है, वही हायरिंग वगैरह कर रहा है। Correct, अभी भी कितने कंपनीज को लगता है कि एचआर जैसे कोई चीज की जरूरत नहीं है। करेक्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी essential part, fields of the part, especially. So, अगर HR है, so they will take care of each and everything. HR is multitask. So they are taking care of onboarding, recruitment, and if you talk about grievances like that, so जहाँ पर एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होता है, कई बार टीम से तालमेल नहीं बैठ पाता है, सो they come to us and discuss regarding this. मैनेजर इज नॉट फेयर, बायस है, या परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं तो दे आर नॉट गिविंग द गुड रेटिंग, सो दे आर हैम्परिंग ऑन दैट। और it is very important. Our exit, if you talk about the operation, employee engagement or the exit part, स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपका एग्जिट हो रहा है तो आपको दोबारा फेस ही नहीं देखना, नहीं, रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखने चाहिए, एम्प्लॉय कैसा भी हो। बट कंपनी या एचआर को हमेशा एम्प्लॉयज के साथ जब वो जा रहे हैं तो अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, ताकि उनको जो उन्होंने 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर जितने भी साल दिए हैं वो उनको याद रखें कि हाँ मैंने इस कंपनी में काम किया। एटलीस्ट कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो वो हमेशा होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सोचा कि मैं ह्यूमंस की फिजिकल हेल्थ में हेल्प करूंगी एंड इवेंचुअली आप मेंटल हेल्थ करेक्ट। तो आपने इतने सालों से, तो आपका एचआर में कितने साल हुए? इट इज 13 years। एचआर में 30 years, ओह माय गॉड। स्पेशली व्हेन यू हैव बीन टच, आपका इतना टच रहा है एम्प्लॉय से पर्सनली, क्लोज। तो विमेन का आप ये कैसा ग्रोथ देखे? इज देयर एनी ग्रोथ जैसे हम पहले देखते थे, जैसे अब मेरी मम्मी हो गई या फिर मेरी चाची हो गई, कोई भी, मैंने जिन लोगों को देखा उन लोगों के काफी लाइफ के, जो पर्सनल लाइफ के, सोशल लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं उसे करियर लाइफ में काफी हैम्परेंस होता है, काफी हैम्पर आते रहते हैं। पहले अगर शादी हो रही है तो पहले तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पेरेंट्स पहले अलाउ करेंगे, अलाउ कि जॉब करना या फिर बिजनेस करना, वो एक हो गया पढ़ा पार। फिर शादी में इन लॉज या फिर हस्बैंड अलाउ करेंगे करना है। देन अगर हम आगे जाके सोचेंगे कि दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, हैव अ किड, देन अगेन वो स्टेज डिसाइड करेगी कि करियर कैसे रहेगा। और मैं ये रिसर्च भी पढ़ती कि ऑलमोस्ट 47% ऑफ द women they quit their jobs after the marriage। ऑलमोस्ट 50% की बात कर रहे हैं हम। तो इतना पढ़ाई और पढ़ाई में हम देख रहे हैं तो रेशियो ऑफ विमेन स्टडिंग इज मोर देन मेन आज के टाइम। बट जॉब छोड़ना विमेन का ज्यादा है। और मैं जितना ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जितने मैं बिजनेस विमेन से बात की हूँ मेरे पॉडकास्ट पे, उन सबका करियर आफ्टर ये चाइल्ड हुआ है। तो मैंने आपको बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन दे दी, बट आप बताइए कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखी है, क्या चीजें देखी है, ऐसे कोई इंसाइट्स जो आप शेयर कर। अभी आजकल अगर देखा जाए तो शादी भी वो लोग सेम सिटी में करते हैं। हाँ। मैं अगर पहले की बात करूँ तो शादी, गर्ल्स अगर शादी के लिए बात चल रही है so they leave the job because कि उनकी different city है, उनको वहाँ move on होना है, and they quit the job, and later on they will continue or not continue, it will be decided after the discussion with their family। but अभी ऐसा नहीं है, husband भी चाहता है कि जॉब करे because nowadays you can't survive in one salary, है ना, इतना महंगाई है, इतना सब कुछ है। so अगर गर्ल्स या पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि जहाँ गर्ल रह रही है वहीं आसपास उसको जॉब के लिए कंटिन्यूशन करें, या फिर अगर बैंगलोर है या किसी और सिटी में है और उस कंपनी का लोकेशन वहाँ पर है तो उधर से भी वो मूव हो सकता है इस सिटी में। सो नाउ डेज पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, इन लॉज आर सपोर्टिंग, हस्बैंड आर सपोर्टिंग, बिकॉज उनको पता है कि आजकल आपको सपोर्ट करना जरूरी है। दैट्स व्हाई।
तो ये तो हुई फैमिली वाली बातें कि Correct. फैमिली हैव चेंज, फैमिलीज हैव चेंज, उनका माइंडसेट चेंज है। वर्क प्लेस में ऐसे क्या चेंजेस आएंगे? जो हम अभी सुधा मूर्ति का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उनके समय जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब women वॉशरूम भी नहीं था। हाँ तो आपने ऐसी कौन सी चेंजेस देखी है जो वर्क प्लेस में अडॉप्ट किए जस्ट टू मेक विमेन कंफर्टेबल? दे क्रिएटेड द पॉस्ट पॉलिसी। अगर कुछ होता है, इन केस अगर कोई मेल है या उनको परेशान कर रहा है या दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर पर्सन ड्यू टू एनी इंसिडेंट, हाँ so company will take the action up to that person, right? Committee होती है, discussion होता है. Apart from that, company is very sensitive regarding the females as well. So, कुछ companies तो अगर लेट वर्किंग आवर्स हैं तो उनको कैब फैसिलिटी भी देती है कि आपको घर तक ड्रॉप करेंगे विद गार्ड के साथ. तो दीज आर द फैसिलिटी. मैंने एक कंपनी में काम किया था गुड़गांव में, जहाँ पर पेपर स्प्रे दिया था फीमेल्स को, एवरी फीमेल्स टू सेव देमसेल्फ. कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ जरूरत है, तो such kind of benefits they are providing, even though they are also giving them the health benefits as well, like कि मेडिकल चेकअप किया. ऑल्सो मेल्स का भी होता है, फीमेल्स का, लेकिन कई बार फीमेल्स में जो है वो हेल्थ की कंडीशंस ज्यादा होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आयरन की कमी है. तो अगर मैं बात करूं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर मैंने कराया था हेल्थ. एंड देखा जाए तो आयरन के इश्यूज या कुछ थायराइड के इश्यूज आते हैं जो फीमेल्स को नहीं पता चलते हैं. हालांकि मेल्स में भी थे, जैसे फैटी लिवर है या ये सब प्रॉब्लम हुआ तो दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. बट फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स ध्यान ही नहीं देती है फॉर देयर डाइट्स, फॉर देयर हेल्थ, कि अगर उनको ज्यादा ठंड लग रही है तो क्यों लग रही है, आयरन की कमी है, दैट्स वही. और स्टार्टिंग से वैसा ही कल्चरली हम इतने इम्बाइब हुए कि हमें केयर करना सिखाया है सबका एक्सेप्ट खुद का तरह. तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि सी फीमेल आर द वर्सेटाइल्स. दे नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, other people, family, office as well, because they are very creative. अच्छा करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं. तो what I will suggest to the females कि initially जब आप वेकअप होते हो, so first 2 hours give to your self care. So initially you can take a bath and do the meditation for your mental health, then do the yoga for your physical health, and then take care of the whatever your day routine is there. कि पूजा कर लिया, घर के लिए खाना बना लिया, अपने लिए भी कुछ किया. So वहाँ से रूटीन आपको स्टार्ट करना. ये भी काफी हद तक देखा है कि वुमेन को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं. हाँ, एक टॉपिक हायरिंग प्रोसेस की भी बात कर लो तो आप पूरा कर लो और एंड में वो आंसर ही ना. आंसर, और आंसर भी समटाइम्स क्या होता है कि आपने पूरा हायरिंग भी कर दिया, रिक्रूटमेंट भी हो गया, ऑफर भी चला गया, एंड लेटर ऑन दे डिडंट पिक अप द कॉल ऑन द जॉइनिंग डेट. ऐसे भी सिचुएशन हुए हैं हाँ, जहाँ पर करते हैं एम्प्लॉइज. वही तो वर्क प्लेस में मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड से काफी थिंकिंग में चेंज आया है. चेंज करने की कोशिश भी की है और चेंज आया भी है. कितने ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि हाँ ऑफ कोर्स रेशियो मेंटेन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कि मेल डाइवर्सिटी करने के लिए. बट मैंने यहाँ पे एक और चीज देखी है. वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई वुड लाइक टू शेयर. एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि they were very ready to take me. I did internship in that MNC और they were very ready कि मानसी तू आ जा, तुझे प्लेसमेंट मिला है कि नहीं, तू आ जा. I was like okay. And then द पर्सन जिनको मैं रिपोर्ट करती थी उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मानसी मैं तेरा रेज्यूमे हमने फॉरवर्ड कर दिया ये वो, बट मुझे तुझसे एक पर्सनल बात करनी है. हमने कहा कि आप बताइए तुम्हारा शादी वगैरह का क्या सीन है. बोली मम्मी पापा ढूंढ रहे, अभी एमबीए किया है 2-3 साल हो गए, बट फिर आप सिटी चेंज करोगे. बोले हम कोशिश तो कर रहे एक ही सिटी में लेने का, बट पता नहीं मे बी ओके बट विल ट्राई इन द सेम सिटी. तो ही सेज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो मुझे ऐसा लगा ठीक है. फिर बाद में बातें पता चली कि सीन ऐसा है, दे वांट टू हायर. एक टैलेंट एक एस्पेक्ट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट हो गया रेशियो मेंटेन करना, तीसरा एस्पेक्ट हो गया
ने शादी किया तो चेंज, शादी नहीं किया तो मे बी चाइल्ड आएगा तब वो ब्रेक लेगी। तो उनका माइंडसेट ऐसा था कि रेशियो मेंटेन करने के लिए उनको कोई ऐसी लेडी चाहिए जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और वो पुणे में रहती है। लाइक माय गॉड, इसमें वर्कप्लेस की भी गलती नहीं है, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि देखा ही ऐसा है, पूरा वेस्ट हो जाता है एफर्ट। रीजन ये होता है दोनों एस्पेक्ट से अगर दोनों, देखा जाए तो रीजन ये है कि जब हायरिंग करते हैं तो दोनों चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फीमेल केपेबल नहीं है, वो है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी भी अलग है अगर देखा जाए तो। अभी क्या है ना कि जब आउटपुट होने का टाइम होगा तो उसकी शादी हो जाएगी, तो वो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पहले शादी है या फैमिली है या बच्चे हैं। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, बट अगर देखा जाए एज ए कंपनी ओनर देखा जाए तो आपने इन्वेस्ट किया तो आप चाह रहे हो कि 3 महीने या 6 महीने बाद वो प्रोडक्टिव हो जाए। हाँ, बट वो फिर अगर उसको जाना है तो आप कुछ नहीं ले सकते, राइट? सो दिस इज द रीजन वाई कंपनी थॉट कि अगर उसके फ्यूचर प्लानिंग शादी के लिए तो हम उसमें सिखाएंगे और तब तक वो चली जाएगी, देन हाउ वी विल आस्क हर टू स्टे। इट्स जस्ट लाइक दैट, जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, करेक्ट, कि हम इतना पढ़ा है लिखा है, बच्चे ने मुझे संभालना चाहिए, बट एट दी एंड बच्चे को अगर संभालना होगा तो ही आपको संभालने वाले, नहीं तो नहीं संभाल सकते, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। करेक्ट। सिमिलरली अगर एक मदर इन लॉ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉटर इन लॉ भी अब मैं रिटायर, एक्सपेक्ट करो, बट वैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट टाइम एफर्ट्स आपने लगाया है ऐसा जरूरी नहीं है आपको वापस मिले। हाँ वो तो है, लेकिन अभी क्या है ना, अगर हमारी संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा केयर करते हैं, पालते हैं, और अ, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही ओल्ड एज में पेरेंट्स हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो उस टाइम पर क्योंकि आप केयर कर, वो आपकी केयर करते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू केयर कि हमें अपने बच्चों से मिलो। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की केयर भी करते हैं, उनको पता है, क्योंकि ओल्ड एज में यू लॉस द मेमोरी, यू आर नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड। तो उन केसेस में हमें करना पड़ता है बियॉन्ड द थिंग्स जाके, मतलब जॉब भी कर रहे हैं या पेरेंट्स की केयर भी कर रहे हैं। मैंने मेरी एक फ्रेंड है, शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव। उसके केस में तो उसने शादी ही नहीं की अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ब्रदर इतना सपोर्टिव था नहीं पेरेंट्स के लिए। तो वहां पर ये हुआ कि क्योंकि उसको वो पेरेंट्स से इतना अटैच थी कि वो लोग 75+ एज है दोनों, फादर और मदर। शी डोंट मैरी, आई उसके पेरेंट्स ने बोला कि आप शादी कर लो, तो उसने बोला नहीं मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप शादी करते हो तो शादी के बाद इट्स टफ फॉर अ गर्ल टू सपोर्ट मतलब हर मदर एंड फादर, वो थोड़ा है। तो उसको लगा कि शायद मैं नहीं करूंगी तो वैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, तो ऐसा भी होता है। मतलब कोई भी फैक्टर है जो आपको अफेक्ट कर सकता है। हमको है ना बहुत अच्छी तरीके से गिल्ट सिखाया है, एटलीस्ट इंडियन कल्चर की मैं बात कर रही हूँ, गिल्ट बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर अभी जैसे पेरेंट्स संभालने की बात हो रही, कभी कभी है ना मेंटली, फिजिकली, मोनिटरीली भी शायद कैपेबल नहीं होते पेरेंट्स को संभालने, कभी कभी हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट जितना गिल्ट इंडिया में आएगा ना उतना बाहर नहीं आएगा। क्योंकि वो इमोशनली अटैच नहीं नहीं है। होते हैं, पहला रीजन ये वही है। है। what I believe nowadays, because females are upper than males, हमारी संस्कृति यही सिखाती है। और जो काम फीमेल्स कर सकती है वो मेल्स नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि स्त्री जननी है सब चीजों की। तो व्हाट आई बिलीव कि फर्स्ट गिव द सेल्फ केयर टू आवर सेल्फ। अगर वो देती है, अगर अपना ध्यान रखती है, तो डेफिनेटली शी विल केयर फॉर द अदर थिंग्स। उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऑफिस में कैसे सरवाइव करना है या केयर करना है, घर को कैसे मैनेज करके, क्योंकि उसके अंदर बैलेंसिंग पावर है फीमेल्स के अंदर, वो हर चीज बैलेंस करके चल सकती है। इतना मेल्स नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी उतना नहीं होती है जितनी फीमेल्स की होती है। बट ये गिल्ट फ्री कैसे करें? गिल्ट फ्री, जैसे आप बोले टाइम देना चाहिए सुबह, करेक्ट, इसको गिल्ट फ्री कैसे करें? क्योंकि सुबह अगर टाइम दे रहे, मैं मैं मेरे जितने विमेन है मेरे लाइफ में, मैं उनकी बात करूँ ना, अगर वो सुबह उठेंगे ना, अपने बच्चे के लिए ना सुबह उठ जाएगा, अगर बच्चे को जॉगिंग पे जाना ना, उठ जाएंगे, उसके लिए शेक बना कर रखेंगे, पर वो खुद के लिए नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि मैंने बोला ना, सबसे पहले अपने आप की केयर करना है पहला।
गिल्ट फ्री आप तब होगे क्योंकि हर चीज आप परफेक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं परफेक्ट कर सकते कि हर चीज आप एक साथ कर सको, इट्स नॉट पॉसिबल टू एनीवन, इधर अ मेल इधर अ फीमेल। प्रायोरिटाइज करो अपने कामों को, जो अर्जेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो करो, अनअर्जेंट अनइम्पोर्टेंट कामों को डिले कर सकते हो। सो वो ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा, बट वो तभी होगा जब आप मानसिक रूप से संतुलित हो गए। तो यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो अभी मेरा हमेशा का टिपिकल दो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ऐसा कोई मिथ जो यू वांट टू बस्ट एचआर रिलेटेड फील्ड के लिए, और दूसरा अ, ऐसे एक एडवाइस आप नारीज को देना चाहते हो अराउंड यू, जस्ट लाइक यू is handling everything in her life. Correct. Facing so many things in her life and wants to help her. तो ये दो चीज आप क्या बताते तो मिथ ये है कि फीमेल सब कुछ कर सकती है, आइडियली कर भी सकती है, लेकिन क्या होता है ना कि परफेक्ट नहीं हो सकती सब चीजें। सो मैं फीमेल्स को यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, जितना कर सकते हो उतना करो, बट हर चीज बैलेंस लेकर चलो कि फैमिली को भी बैलेंस दो, ऑफिस में भी बैलेंस दो, हर चीज करो, अच्छा है। सेकेंड, you ask एडवाइस? advice. So advice is like कि as a HR, you need to be take care of each and everything. Like employees, especially female employees का well-being कैसा है। कई बार होता है कि हम पैटर्न देखते हैं कि एम्प्लॉयज छुट्टी ले रहे हैं, ज्यादा छुट्टी ले रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो रीजन समझ में आता है, कई बार फीमेल्स जो हैं वो फैमिली में प्रेशर है या कुछ अनसर्टेन चीजें आई हैं, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस की वर्क फ्रॉम होम दे दिया इन एक्सेप्शन केसेस, या फिर उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दे दिए, और अगर वो अच्छा काम कर रही हैं और वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो फीमेल्स को चाहिए कि बस मुझे समझे कोई, मुझे सुने कोई, राइट। अगर वो भी हो जाता है एज ए एचआर आप करते हो, तो ये बहुत अच्छी जगह होगी कि जहाँ जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं उनको लगेगा कि वो घर पर ही हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंटेंशन की तो बात ही नहीं करती। विमेन जो भी अगर करती है, विमेन ह्यूमन बीइंग जो भी अगर मन लगा के करते हैं ना, वो 100%। तो सिर्फ उनको कंसिडरेट होने का आपने बोला ना, सिर्फ रिकॉग्नाइज करो, सिर्फ समझो, सिर्फ इतना भी कर लिया ना, 100 को आप बेसिकली चाहिए कि सुने हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये उनको भी पता है। हाँ, तो तुमको कोई सुने ना, वो अपना दिल हल्का कर लेती है, तभी वो चीजें रिजॉल्व हो जाती है। ऐसा रहता है। तो आज हमने बहुत चीजों पे बातें की। कंपनीज हो गया, फैमिलीज हो गया, विमेन हो गया, से वेल बीइंग विमेन हो। तो हमें एक चीज मैं कंक्लूड करूंगी कि अ, सुन लो, है ना। जब कोई अगर कुछ बोल रहा है तो सुन लो। वो एक सुनना भी किसी के 2 दिन निकल सकते हैं, मतलब कुछ ही 2 दिन निकल सकते हैं। और बहुत जगह पे, जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने बोला इंट्रोडक्शन, अनहर्ड वॉइसेस अनहर्ड हो जाते हैं कि विमेन इनविजिबल करते हैं। वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, काफी हद तक इनविजिबल हो जाते हैं। तो हम सिर्फ हम इतना भी कंट्रीब्यूट करें ना, उनको देख ले और सोचो ले, तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच ज्योति, आप अपने टाइम वेरी नाइस। क्योंकि हम सिर्फ अभी तक फैमिली पर्सनल लाइफ की बातें कर रहे हैं, वर्क प्लेस की हम कभी बातें नहीं कर पाए। ये बहुत अच्छा लगा कि एचआर स्टेज तक पहुंच चुका है इंडिया की। लगे तो हम बात कर लेते कि दे अंडरस्टैंड विमेन, एटलीस्ट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी अंडरस्टैंड के तो हम बाद में बात करते है ना। तो ये भी चीजें हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स हो जाए ये सब। और ये भी एक चीज ऑब्जर्व की, स्टार्टअप कल्चर में काफी हद तक ये चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। एमएनसीज को थोड़ा झिझक आती है क्योंकि बहुत लोग होते हैं, हर एज हर कल्चर के लोग होते हैं, तो उनको चीजें चेंज करने में बहुत रेजिस्टेंस आता है। यही स्टार्टअप में काफी चीजें इजीली हो जाती है। हो जाती है। दूसरा ये भी है कि आजकल हर कंपनी
सेंट्रिक सोच रहे हैं। उनको पता है कि अगर क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी यही कहती है। हाँ, अगर आप बात करो ओके गवर्नमेंट पॉलिसीज भी यही कहती है कि आपको चीजें सोचनी होंगी, पॉलिसीज हैं, फीमेल्स के लिए भी पॉलिसी स्टेब्लिश करनी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सेंसिटिविटी है तो उस पर भी केयर करना हो। कंपनी खुद से भी सोच रही है, ऐसा नहीं है कि बोल गवर्नमेंट रहा है हाँ कोई। गवर्नमेंट भी है। HR इनिशिएट्स लेते हैं इस चीज के लिए कि हम मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। इवन दो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हम लोग वो भी करते हैं, सेशंस भी करते हैं, कई बार करते हैं। इवन मैंने बहुत सारी कंपनीज में कराया हुआ है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सेशन कराया है या फिजिकल हेल्थ या योगा का सेशन कराया है, जिससे कि उनको पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कुछ है तो उसको वो रिजॉल्व भी करें। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much, Maisi, for giving me such a wonderful opportunity. was really good spend of the Sunday. अच्छा संडे का आफ्टर बहुत अच्छा था। Me too. Thank you so much. Today's podcast was shot in this amazing place called Parasbagh Garden Cafe. It's not just a garden cafe but also a beautiful nursery. They grow all kind of vegetables here, completely organic and chemical free. Most of the dishes they serve are prepared using the same fresh produce grown right in their own garden. What makes this place so special is their philosophy. They believe in reconnecting with Mother Earth, nurturing what we eat, and celebrating nature in every meal.